Hello guys, this is Zoologist AK and I am here with this topic biological role of site specific recombination. One part of this topic I have already discussed in my previous video. That link I will going to share in my description box. So if you want to watch that video, then please go through my description box, and in that video I have talked about an example of tyrosine recombinase, and in this video I am going to talk about serine recombinase. That these both types of recombinase, tyrosine recombinase and serine recombinase, that have been identified till now are the part of the enzymes that play a specific role in site specific recombination. So today I will going to talk about heme recombinase that play a role in the bacteria, or here today I will specifically talk about Salmonella typhi, in which this serine recombinase, that is hin recombinase, is simply does nothing but invert the segment of DNA. Due to this inversion the segment of DNA, the bacteria result in the alteration in the expression of that particular gene that code for flagellin protein that form the flagella. And due to this flagella, bacteria move inside the host organism, and this flagellar part that present on the surface of bacteria is attacked by the host immune system. So by converting the flagellar types, the bacteria simply adapt or readapt in the new environment of the host cells, due to which it gets survived there, and make sure that he survive and save himself from the host immune system. So today I'm going to discuss the mechanism of this heme recombinase and some enhancer molecular architectural protein that I have already discussed in my previous videos about that IHF that play role in tyrosine recombinase. Similarly, in this also I am talking about some architectural protein that play major role in the activation of this heme recombinase. So let's begin with me. And this picture here represent the micrograph of Salmonella typhi, and this red color indicate the Salmonella, and these are the cultural cells or human cultural cells in which this Salmonella typhi is invading inside, and this hair like projection is nothing but the flagellar part of the bacteria. So let's understand the mechanism of heme recombinase. So first point is DNA inversion by the heme recombinase of Salmonella. So we are going to discuss here the mechanism कि कैसे ये इन्वर्जन होता है हिन रिकम्बिनेज के थ्रू. यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हिन जो है वो इन्वर्ट करता है. यहाँ पे हम सिंपली क्या समझने जा रहे हैं, क्लास ऑफ रिकम्बिनेशन रिएक्शन. जो हिन रिकम्बिनेज एक एंजाइम है, प्रोटीनेसियस एंजाइम है, जिसके थ्रू वो कंडक्ट की जाती है और ये मेनली बैक्टीरिया में ही होती है. तो ये जो प्रोसेस है ये हिन रिकम्बिनेज के थ्रू जब की जाती है तो उसमें एक सेगमेंट होता है डीएनए का, वो इन्वर्ट कर दिया जाता है. इसीलिए इस प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट. प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट क्योंकि प्रोग्राम्ड इसलिए क्योंकि ऑलरेडी सेल्स में ये प्रोग्राम्ड है कि जब भी कोई पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की वो इन्वेंट करेगी और होस्ट ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगी, तो उन्हें एक नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना है, तो उन्हें अपनी फ्लैजिला को एक्सचेंज करना पड़ेगा और इन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है उन पर अटैक ना करे. और फिर रीअरेंजमेंट इसलिए क्योंकि वो अपने जीन्स को, अपने सीक्वेंस को रीअरेंज करते हैं, इसलिए इसको रीप्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट बोला गया है. क्योंकि ये हेल्प करती है प्री अडेप्टेशन में. प्री अडेप्टेशन इसलिए कि वो ऑलरेडी अडेप्ट कर जाए जब भी वो किसी न्यू एनवायरनमेंट में एंटर करे. सो यहाँ पे जब हम हिन इन्वर्जन की बात कर रहे हैं, हिन इन्वर्जन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे हिन जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑन और ऑफ शो किए गए हैं, दो स्टेज शो की गई हैं. तो यहाँ पे हमारा हिन
फ्रंट में प्रेजेंट है और प्रमोटर बैक साइड में प्रेजेंट है, पर यहाँ पे हमारा हिन जो है वो बैक साइड में प्रेजेंट है और प्रमोटर फ्रंट में प्रेजेंट है। मीन्स ये इन्वर्ट हो गए हैं, इन्वर्जन हो गया यहाँ पे। तो जब हिन इन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो ये सिंपली हेल्प करता है बैक्टीरिया का टू एंटर द होस्ट इम्यून सिस्टम एंड टू सर्वाइव इन द होस्ट इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे हेल्प करता है ये हिन इन्वर्जन बैक्टीरिया को अडेप्ट करने में किसी भी होस्ट इम्यून सिस्टम में। तो यहाँ पे कुछ जीन्स होते हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं इन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू, और ये जो इन्वर्जन प्रोसेस है इसमें जो जीन कंट्रोल किए जाते हैं वो इनकोड करते हैं टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स को। किसकी फॉर्म्स को? फ्लैजिलिन की फॉर्म्स को। फ्लैजिलिन क्या है? एक सिंपल प्रोटीन होता है जो फ्लैजिला को फॉर्म करता है, बैक्टीरियल फ्लैजिला को फॉर्म करता है। तो ये जो जीन्स हैं ये होते हैं H1 एंड H2 फॉर्म्स होती हैं, और ये फ्लैजिला फिलामेंट के प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो होस्ट इम्यून सिस्टम है वो फ्लैजिला को ही अटैक करता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया की सरफेस पे प्रेजेंट होती है, तो डायरेक्टली वो उसके सरफेस पे ही अटैक करेगा। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस हिन रिकम्बिनेज का यूज़ करते हैं टू स्विच बिटवीन दिस अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फ्लैजिला। जैसे कि मैंने बात की थी, फ्लैजिलिन फॉर्म होता है H1 एंड H2 जो फ्लैजिला को फॉर्म करेगा, तो उनको अल्टरनेटिव फॉर्म्स को के बीच में स्विचिंग करने के लिए वो यूज़ करते हैं हिन रिकम्बिनेज का, और अवॉइड करते हैं उनके स्ट्रक्चर को कि वो रिकॉग्नाइज ना किया जाए होस्ट के इम्यून सिस्टम के थ्रू, और वो क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए। तो यहाँ पे इस हिन रिकम्बिनेज के मैकेनिज्म को समझने के लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे साल्मोनेला टाइफिका, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो शो किया गया है वो एक क्रोमोसोमल रीजन शो किया गया है साल्मोनेला टाइफिका, जो इन्वर्ट किया जाता है हिन के थ्रू। वो अबाउट 1000 बेस पेयर लॉन्ग होता है, और इस सेगमेंट को जो कि 1000 बेस पेयर लॉन्ग है, जो इन्वर्ट किया जाता है हिन रिकम्बिनेज के थ्रू, वो फ्लैंक्ड किया जाता है एक स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन साइट के थ्रू। फ्लैंक मीन्स दोनों साइड में जो 1000 बेस पेयर लॉन्ग जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का, जो इन्वर्ट किया जाता है हिन रिकम्बिनेज के थ्रू, वो दोनों साइड में यहाँ पे फ्लैंक किया जाएगा, या दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे कुछ सीक्वेंस, जिनको यहाँ पे बोला जाता है हिक्स HIXL एंड HIXR। L स्टैंड फॉर लेफ्ट एंड R स्टैंड फॉर राइट। तो दोनों में यहाँ पे टू साइट में एक स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन साइट प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हमने अपनी स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन साइट की वीडियो में बात की, उस टाइम पे हमने ये बोला था कि स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन ऐसे होता है जब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकम्बाइनिंग साइट और रिकम्बिनेशन साइट आइडेंटिफाई की जाती है, उनको इन्वर्ट किया जाता है, उनके बीच में डिलीशन किया जाता है, उनमें इन्वर्जन किया जाता है। तो जब हम सीरीन रिकम्बिनेज की बात करते हैं तो वहाँ पे एक ही क्रोमोसोमल पार्ट होता है, उसी में दो सेगमेंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ इन्वर्ट किए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, दो रिकम्बिनेशन साइट आइडेंटिफाई की जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, एक बीच में प्रेजेंट होगा 1000 बेस पेयर लॉन्ग सेगमेंट जो इन्वर्ट किया जाएगा, और उनके जो साइड में प्रेजेंट होंगी दो रिकम्बिनेशन साइट होंगी, जो कि HIXL लेफ्ट है और HIXR जो कि राइट है। तो ये जो सीक्वेंस है ये इन्वर्ट किए जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हिक्स एल है और हिक्स आर है, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, इन्वर्टेड पोजीशन में प्रेजेंट है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये इस ओरिएंटेशन में और ये इस ओरिएंटेशन में, तो दोनों ही हिक्स एल और हिक्स राइट जो है वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, इन्वर्टेड ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है। तो ये जो इन्वर्टिबल जो सेगमेंट है ये कैरी करते हैं कुछ जीन जो इनकोड करते हैं हिन को और हिन रिकम्बिनेज को, ये इनकोड करते हैं। दूसरा ये कैरी करते हैं एक प्रमोटर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सीक्वेंस जो इन्वर्ट किए जाएंगे, ये सीक्वेंस अबाउट 1000 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं, और इनमें दो जो मेन सेगमेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर जीन को कैरी करेगा और एक पर्टिकुलर जीन को इनकोड करेगा, वो इनकोड करेगा हिन रिकम्बिनेज को। दूसरा होता है एक प्रमोटर, और ये प्रमोटर हेल्प करता है एक पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन में जो इस इन्वर्टिबल सेगमेंट से बाहर लाई करते हैं। बट जो हिक्स आर है
उसके एडजेसेंट में लाई करते हैं, जैसे कि FLJB और FLJA, ये दो जीन हैं, पर्टिकुलर जीन, इनका जो एक्सप्रेशन है वो कंट्रोल किया जाता है इस प्रमोटर के थ्रू, जो किस में प्रेजेंट है, इन्वर्टिबल सीक्वेंस में। ये क्या है यहाँ पे, इन्वर्टिबल सीक्वेंस, जो इन्वर्ट कर दिया जाएगा इस रिकम्बिनेशन प्रोसेस के दौरान। तो इसके बारे में हम बात करें तो जब ये इन्वर्टिबल सेगमेंट जो हैं ये ओन ओरिएंटेशन में होते हैं, तो यहाँ के जो एडजेसेंट जीन है ये एक्सप्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रमोटर है वो नियर बाई प्रेजेंट है और वो उनके एक्सप्रेशन को क्या करेगा, मतलब एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन होगा वहाँ पे, जिसकी वजह से प्रोटीन फॉर्म हो पाएगा इन जीन्स के थ्रू, और पहले mRNA फॉर्म होगा, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन फॉर्म आएगा। तो ये प्रमोटर क्या करता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन करवाता है इन जीन्स का। बट जब ये ऑफ ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होते हैं तो जो जीन है वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो हिन और प्रमोटर हैं ये दोनों क्या कर दिए गए, यहाँ पे इन्वर्ट कर दिए गए हैं। हिन यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है और प्रमोटर की जो पोजिशन है वो चेंज कर दी गई है, जिसकी वजह से प्रमोटर एक डिस्टेंट लोकेशन में प्रेजेंट है, तो वो एक्सप्रेशन नहीं करवा पा रहा इन जीन्स की FLJB और FLJA की जो एक्सप्रेशन है उसको वो एनहेंस नहीं कर पा रहा, और यहाँ पे आके पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पा रहा प्रमोटर पे। अगर वो बाइंड भी कर देगा तो भी इन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, इनहिबिट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर है वो फंक्शनल ना होके क्या हो गया, रिप्रेसिबल प्रमोटर प्रेजेंट है यहाँ पे। तो जो दो जीन है यहाँ पे, डेट इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस फ्लैपिंग प्रोमोटर। फ्लैपिंग प्रोटीन इसलिए प्रमोटर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट था, फिर उसके बाद इन्वर्जन के बाद भी यहाँ पे आ गया, तो ये फ्लिप कर रहा है। इस फ्लिपिंग प्रमोटर के अंडर में दो जीन है जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, FLJB और FLJA। ये इनकोड करते हैं डिफरेंट फ्लैजिलिन प्रोटीन को। FLJB जो है वो H2 फ्लैजिलिन को प्रोटीन को इनकोड करता है, FLJA जो है वो H1 फ्लैजिलिन प्रोटीन को इनकोड करता है, जो बाद में क्या करते हैं, फ्लैजिला फॉर्म करते हैं। सॉरी, ये जो FLJA है ये एक ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर को इनकोड करता है, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर ऑफ द जीन फॉर H1 फ्लैजिलिन। तो जो H1 फ्लैजिलिन जीन है वो लोकेट होता है एक डिस्टेंट साइट पे। तो जब ओन ओरिएंटेशन होगी उस टाइम पे H2 फ्लैजिलिन एंड H1 रिप्रेसर दोनों ही एक्सप्रेस हो जाते हैं। जिसकी मैंने बात की कि FLG जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर को इनकोड करता है फॉर H1 फ्लैजिलिन, एंड इसलिए यहाँ पे FLG जो भी जीन है वो यहाँ पे H2 फ्लैजिलिन को इनकोड करेगा और ये रिप्रेसर को इनकोड करेगा। तो जब ये ओन ओरिएंटेशन में होंगे और प्रमोटर जो है अपनी फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट होगा और अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, उस टाइम पे यहाँ पे H2 फ्लैजिलिन FLJB जीन के थ्रू इनकोड किया जाएगा और FLJA जो जीन है यहाँ पे वो रिप्रेसर को इनकोड करेगा। बट जब यहाँ पे ऑफ ओरिएंटेशन होगी उस टाइम पे क्या होगा, सेल हैव H2 टाइप जब यहाँ पे जो ऑफ पोजीशन होगी उस टाइम पे क्या होगा, ना तो यहाँ पे जो H2 फ्लैजिलिन है वो यहाँ पे इनकोड किया फॉर्म होगा, और ना ही यहाँ पे FLJA जीन के थ्रू ना ही H1 रिप्रेसर यहाँ पे सिंथेसाइज किया जाएगा। इस वजह से क्या होगा, ओन कंडीशन में तो ओन ओरिएंटेशन में यहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा उसके सरफेस पे H2 टाइप फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, और ऑफ ओरिएंटेशन में बैक्टीरिया के सरफेस पे H1 टाइप की फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि ऑन और ऑफ स्विचिंग करके और दिस इन्वर्जन के थ्रू और इन्वर्ट करके हिन और प्रमोटर को हिन रिकम्बिनेज के थ्रू कैसे बैक्टीरिया अपनी फ्लैजिलिन प्रोटीन में क्या करता है, स्विचिंग करता है, H2 से H1 में स्विचिंग करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की फ्लैजिला फॉर्म होती हैं। अब तो हमने अंडरस्टैंड किया कि कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे स्विचिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हिन रिकम्बिनेज है उसको एक DNA एनहेंसर की ज़रूरत होती है एक्सप्रेस होने के लिए।
जो ये एनहेंसर होता है ये एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है, अबाउट 60 बेस पेयर लॉन्ग होता है, जो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शनल एनहेंसर की तरह ही काम करता है। जैसे वो स्टिमुलेट करते हैं एक्सप्रेशन को और ट्रांसक्रिप्शन को, सेम यहाँ पे ये जो एनहेंसर है ये स्टिमुलेट करता है रिकम्बिनेशन रिएक्शन के रेट को, और ये इसका रेट अबाउट 1000 फोल्ड इंक्रीज कर देता है ये एनहेंसर सेगमेंट। तो जस्ट लाइक अदर सेगमेंट ये भी ऐसे ही फंक्शन करता है और डिस्टेंटली लोकेट होता है। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी यहाँ पे क्रोमोसोम होगा, मान लो यहाँ पे हमारा प्रमोटर प्रेजेंट है, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है जो इनकोड होने हैं, यहाँ पे एनहेंसर प्रेजेंट है, तो वो ऑलरेडी एक डिस्टेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होता है और वो एनहेंस करता है एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर जीन का। तो सिमिलरली ये जो एनहेंसर है ये भी डिस्टेंटली लोकेट होता है। दिस एनहेंसर प्रोटीन रिक्वायर सम प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन होते हैं बैक्टीरियल प्रोटीन जिसको हम फिस बोलते हैं, FIS। दिस फिस स्टैंड फॉर फैक्टर, F स्टैंड फॉर फैक्टर, I stand for inversion, S stand for stimulation. So these FIS stand for factor for inversion stimulation, means ये उन फैक्टर्स को इनकोड करेगा जो स्टिमुलेट करेंगे इन्वर्जन प्रोसेस को और दिस रिकम्बिनेशन प्रोसेस को। जैसे IHF जो था वो फंक्शन करता था, सिमिलरली ये फंक्शन करता है, बट इनके फंक्शन में कॉन्ट्रास्ट है। ये जो फिश है वो एक साइट स्पेसिफिक DNA बेंडिंग प्रोटीन है, बाइंडिंग प्रोटीन नहीं, DNA बेंडिंग प्रोटीन है। वहाँ पे भी बेंडिंग हो रही थी जब हम टायरोसिन रिकम्बिनेज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी जो फिश है वो क्या करवाता है, बेंडिंग करवाता है। बेंडिंग करवाने की वजह से क्या होता है, डिफरेंट साइड्स जो है वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फिश बेंडिंग करवाता है उस टाइम पे क्या होता है, ये बेंडिंग कैसे करवाता है, प्रोटीन प्रोटीन कॉन्टैक्ट के थ्रू। ये प्रोटीन प्रोटीन कॉन्टैक्ट करता है और प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन करता है किसके साथ, एक दूसरे प्रोटीन के साथ, वो होता है हिन प्रोटीन, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। हिन प्रोटीन जो रिकम्बिनेशन रिएक्शन के लिए बहुत ही नेसेसरी और इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है। जो हिन है वो असेंबल करता है और पेयर करता है किसमें, एक हिक्स साइट पे। हिक्स साइट पे HIX जो साइट है, जैसे कि हिक्स, मैंने हिक्स L की बात की थी और हिक्स R की बात की थी जो कि लेफ्ट और राइट साइड थी, तो उसके साथ ये क्या कर जाता है, असेंबली कर जाता है। कौन, ये हिन प्रोटीन एक, और उसके साथ जब असेंबली करता है तो एक स्नैप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक स्नैप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। जब हिक्स के साथ बाइंड कर जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है, एक स्नैप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और ये स्नैप्टिक कॉम्प्लेक्स तभी फॉर्म होता है जब यहाँ पे अब्सेंस होती है किसकी, फिस एनहेंसर कॉम्प्लेक्स की, किसकी, फिस एनहेंसर कॉम्प्लेक्स की। जब यहाँ पे क्या होती है, अब्सेंस होती है, तभी ये जो हिन है वो हिक्स के साथ बाइंड करके एक स्नैप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और जब फिस का जो एक्टिवेशन होता है, फॉर फिस एक्टिवेशन ऑफ हिन, जो फिस एक्टिवेशन करता है हिन का, तो वहाँ पे 3 DNA साइट जो है वो रिक्वायर होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, 3 DNA साइट्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। जब फिस जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट करता है हिन प्रोटीन को, उस टाइम पे यहाँ पे 3 DNA जो साइट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो DNA साइट्स होती हैं हिक्स L जो कि लेफ्ट साइड है, हिक्स राइट जो कि हमारी राइट साइड है, और एक एनहेंसर मॉलिक्यूल्स की। और ये तीनों साइट एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पास में होनी चाहिए। दीज साइट्स नीड टू कम टुगेदर। सो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जब ये तीनों साइट एक दूसरे के पास आ जाती हैं तो उसको 3-वे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 3-वे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और ये जो 3-वे कॉम्प्लेक्स है ये फैसिलिएट किया जाता है किसके थ्रू, नेगेटिव सुपर कोइलिंग के थ्रू, जो कि यहाँ पे शो की गया, नेगेटिव सुपर कोइलिंग के थ्रू ये फैसिलिएट की जाती है। क्या फैसिलिएट की जाती है, ये 3-वे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फैसिलिएट की जाती है क्योंकि ये स्टेबलाइज करती है एसोसिएशन किसकी, डिस्टेंट DNA साइट की। डिस्टेंट DNA साइट क्या, जैसे कि हमें पता है कि बीच में यहाँ पे इन्वर्टिबल सीक्वेंस होता है जो कि 1000 बेस पेयर लॉन्ग है, उसके साइड में यहाँ पे हिक्स L और हिक्स R प्रेजेंट होते हैं, और एक एनहेंसर मॉलिक्यूल भी डिस्टेंटली लोकेट होगा। तो उन सारी साइट्स को एक दूसरे के करीब
और पास लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको एक कॉम्प्लेक्स में फॉर्म करना पड़ेगा और वो 3 वे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो उसके लिए नेगेटिव सुपर कोइलिंग की यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से ये एसोसिएशन जो है ये स्टेबलाइज हो जाती है। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये हिक साइट है, ये एनहेंसर है। तो हिन से बाइंड होकर सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, फिर फिस बाइंड होगा तो 3 वे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और यहाँ पे नेगेटिव सुपर कोइलिंग जो है उसको यहाँ पे स्टेबलाइज कर देगी। एक अनदर आर्किटेक्चरल प्रोटीन होता है यहाँ पे, उसको बुला देता है HU प्रोटीन। ये फैसिलिटेट करता है असेंबली इस इन्वर्टासोम कॉम्प्लेक्स की, जो कि यहाँ पे शो किया गया है इन्वर्टासोम कॉम्प्लेक्स। ये ग्रीन कलर में हमारी एक साइट है, येलो कलर में एनहांसर है और यहाँ पे हिन जो है हमारा ये ऑरेंजिश कलर में है और उसके बाद हमारा वॉयलेट कलर में फिस बाइंड है। तो ये जो इन्वर्टासोम कॉम्प्लेक्स है, ये इसकी जो बाइंडिंग या असेंबली है ये फैसिलिटेट की जाती है एक अनदर टाइप के आर्किटेक्चरल प्रोटीन के थ्रू, जो कि हमारा HU प्रोटीन होता है। और ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में बाइंड करता है। जैसे अगर हम IHF की बात करें तो वो सीक्वेंस डिपेंडेंट मैनर में बाइंड करता है, पर जो HU है वो सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में बाइंड करता है। सो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल रैशनल फॉर कंट्रोल ऑफ हिन इन्वर्जन बाय द फिस एनहेंसर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हमने ये समझ लिया कि यहाँ पे हिन होगा वो सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, फिर फिस होगा जो यहाँ पे एक इन्वर्टासोम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, HU होगा जो असेंबली को फैसिलिटेट करेगा और सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में बाइंड करेगा। तो ये हमने समझ लिया कि कैसे ये एनहेंसर की तरह काम कर रहे हैं और रिकम्बिनेशन प्रोसेस को एनहेंस करवा रहे हैं। बट एक अनदर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल रैशनल फॉर कंट्रोल ऑफ हिन इन्वर्जन बाय द फिस एनहेंसर कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत ही जरूरी मैकेनिज्म हो जाता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो रिकम्बिनेशन प्रोसेस ऑक्योर हो रही है वो 2 साइट के बीच में ही हो, और वो 2 साइट क्या होंगी, हिक साइट। और ये हिक साइट जो है वो एक ही DNA मॉलिक्यूल पे और एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगी। मैंने अपनी बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियो में जिसमें मैंने साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन की बात की थी, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि जब भी रिकम्बिनेशन एक DNA मॉलिक्यूल में होती है और एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट 2 रिकम्बिनेशन साइट्स के बीच में रिकम्बिनेशन होता है, उस टाइम में इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे ये जो फिस है और हिन वर्जन है जो कंट्रोल किया जा रहा है फिस एनहेंसर के थ्रू, वो ये इंश्योर करता है कि रिकम्बिनेशन केवल और केवल हिक साइट के बीच में ही हो। और ये हिक साइट क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड की गई है, जो फ्लैंक कर रही है इन्वर्टिबल सीक्वेंस को, तो वो सेम DNA मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट हो। तो ये जो सिलेक्टिविटी है ये इंश्योर करती है कि जो इन्वर्टिबल सीक्वेंस है वो फ्लिप्ड किया जाए फ्रीक्वेंटली, बट आल्सो डैट इंटरमोलिकुलर DNA रीअरेंजमेंट occur हो, जो which could disrupt the integrity of bacterial chromosome, and this integrity of bacterial chromosome could be avoided. Guys, if you really like my video, then please subscribe to my channel and support me. And if you know someone who is in the same world that in we are in the biological world and studying what we are studying, then please share my video with them. And if you have any query, then please write in the description box given below. And please don't comment anything or any unusual thing, because it is sometimes make me feel inappropriate or uncomfortable. So text me or comment whatever is suitable only. Thank you so much for watching my videos.